بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت کی پیدائش ملک سرجستان میں سن 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت خواجہ کے پرخوں کا وطن ہرات کے قریب شہر چشت میں تھا، اسی لیے آپ چشتی کہلاتے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت خواجہ ریاض الدین حسن چشتی تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت خواجہ کی شروع کی تعلیم اور تربیت آپ سے ہی نگرانی میں ہوئی، لیکن حضرت خواجہ کی عمر مشکل سے 11 سال کی تھی۔ آپ کے والد عراق میں وفات ہو گئے۔ حضرت کو باپ کی میراث نے ایک باغ ملا تھا۔ آپ اسی باغ کی آمدنی اور پیداوار سے اپنی اور گھر والوں کی ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز اس باغ میں بیٹھے تھے کہ ابراہیم قلندر مالی ایک مجوم اور آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت آپ نے محسوس کر لیا کہ آپ کا دل روشن ہو گیا ہو، دنیا اور دنیا والوں سے آپ کا دل ہٹ گیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے باغ اور سارا سامان بیچ کر اس کی رقم کو رشتہ داروں کو غریبوں میں باندھ دیا اور وطن چھوڑ کر حق پانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ وطن چھوڑ دینے کے بعد سب سے پہلے سمرقند پہنچے۔ وہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور دوسری علم حاصل کرنے میں لگی رہے۔ اس کے بعد آپ قصبہ ہارون میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو خاص مریدوں میں شامل کر لیا۔ اسی بیچ آپ نے اپنے پیر کے ساتھ دمشق کا سفر بھی کیا۔ وہاں آپ نے درویشوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو خدا کے عشق میں مست تھی۔ آپ نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ اس وقت بھی آپ نے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی آپ پر بڑی مہربانی تھی۔ آپ کی پوری تربیت انہوں نے کی، یہاں تک کہ پورا سکھانا پڑھانے کے بعد انہوں نے حضرت خواجہ سے فرمایا، اے معین الدین، یہ سب تعلیم تمہاری مکمل تربیت کے لیے تھی۔ تم کو اس تعلیمات پر پوری زندگی عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن مجھے شرمندگی نہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی تعلیمات سے فارغ ہو کر آپ اپنے وطن سرجستان واپس تشریف لے آئے اور وہاں سے تبلیغ کے لیے ہندوستان کے لیے رخ کیا۔ ہرات، بلخ، غزنی ہوتے ہوئے آپ دلی پہنچے۔ دلی میں آپ کچھ دن ٹھہرے تھے، پھر وہاں سے آپ اجمیر چلے گئے۔ جب 1193 عیسوی میں آپ دلی سے اجمیر کے لیے پہنچے، اس وقت آپ کے ساتھ آپ کو چاہنے والے کوئی 40 آدمی تھے۔ قصبہ سمانہ میں راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے آپ کو روک لیا، اسی لیے کہ راجہ کو کسی میں بتا دیا تھا کہ اس قسم کا بزرگ تمہارے راجیہ کا دشمن ثابت ہوگا، تم اس سے چوکس رہنا۔ آپ کو اس وہم سے روکا گیا، لیکن آپ میں ایسی کوئی بات نہ دیکھ نوکروں نے بعد میں چھوڑ دیا اور آپ اجمیر پہنچ گئے۔ اجمیر شریف پہنچنے کے بعد حضرت نے آبادی کے باہری پیڑ نیچے پڑاؤں ڈالنا چاہا۔ وہ جگہ تھی جہاں راجہ کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ رات کے وقت جب راجہ کے اونٹ آئے تو بادشاہ کے نوکروں نے حضرت سے کہا کہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لیے، یہاں آپ کو پناہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا بھائی، ہم یہاں سے اٹھے جاتے ہیں، تمہارے اونٹ یہاں شوق سے بیٹھی۔ یہاں فرمانے کے بعد حضرت وہاں سے اٹھ کر تالاب
अम्मा साहिब के किनारे चले गए, यहाँ मंदिर थे और वहीं क़याम फरमाया। बयान किया जाता है कि अजमेर शरीफ में एक ज़माने में एक जिन रहता था। राजा और अजमेर में बाशिंदे इन जिन से इतनी अकीदत रखते थे कि वे उसे पूछते थे। राजा ने उस जिन के वास्ते कुछ बर्फने भी वक्फ कर दिए। हजरत जब वहां पहुंचे और आपकी बुजुर्गी आमतौर से लोगों तक पहुंचने लगी तो यह जिन भी हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। उस पर आपने अखलाक का, आपके रहन सहन और आपकी बातों का इतना असर हुआ कि उसने फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गया। हजरत ने इस जिन का नाम शादी बेव रखा और अपनी तालीम व तरबियत से उसे कमाल दर्जे तक पहुंचा दिया। इस जिन का हजरत के खादिमों में शामिल होना था कि लोगों ने मुखालफियत करना शुरू कर दिया कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं और सिर्फ जादू के जोर से उनके माबूद जिन को काबू में कर लिया। इसलिए हजरत के मुकाबले के लिए चोटी के जादूगरों की खोज शुरू हो गई। उस जमाने में जयपाल जादूगर बहुत बड़ा जादूगर समझा जाता था। जयपाल के बारे में आम ख्याल यह था कि दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर उसके मुकाबले में नहीं बैठ सकता था। चुनांचे राजा पृथ्वीराज ने जयपाल को हजरत के मुकाबले पर तैयार किया। जयपाल जादूगर जब हजरत के मुकाबले के लिए आया तो उसके साथ 1500 मुरीद जादूगर थे। 700 जादूगर के खौफनाक अजदहे और साफ थे और 1500 तलस्मी जादुई चक्कर थे। इस तलस्मी चक्करों का कमाल यह था कि हवा में जादू के जोर से तैरते फिरते थे और 100 मील तक दुश्मन के लश्कर में आकर दुश्मनों के सर उड़ा देते थे। गरज ये थी कि जयपाल जादूगर पूरे इंतजामात के साथ हजरत के मुकाबले में आ गया था। हजरत को जब इत्तला मिली कि जयपाल जादूगर पूरी ताकत के साथ हवा बोलने वाला है तो आपने वजू करके अपने साथियों के चारों तरफ डंडे से हल्का खींच दिया और फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हल्के के अंदर में तो दुश्मन आ सकता है और ना उसका जादू ही असर कर सकता है। चुनाते जब जयपाल अपने साथियों के साथ इस हल्के के पास पहुंचा और हल्के के अंदर कदम बढ़ाने की कोशिश की तो सब के मुंह पर बाल गिर पड़े। इस कोशिश में नाकाम होने के बाद जयपाल ने अपने जादू की दूसरी ताकतों से काम लेना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से जयपाल कोई जादूगर भी कामयाब न हो सका बल्कि उल्टा उसी की तबाही की वजह बन गया। हालत यह थी कि जयपाल हजरत पर जो भी जादू करता था वह पलट कर जयपाल के ही आदमियों को फना कर देता था। उसके फेंके हुए बयान तलसनी चक्कर पलट पलट कर उसी के आदमियों की गर्दनें उड़ा देते थे और उसके जादू के तमाम सांप और अजदहे हजरत पर हमला करने की बजाय पहाड़ों में घुस गए थे। हजरत की जिंदगी की निहायत सादा थी। आप बहुत ही कम खाना खाते थे। अक्सर 3 दिन के बाद रोटी के सूखे टुकड़े पानी में तैर कर खा लेते थे और इन सूखे टुकड़ों की भी मिकदार मुश्किल से 1.5 तोला होती थी। कपड़ा बहुत ही सादा पहनते थे। जब आपके कपड़े फट जाते थे तो खुद ही अपने हाथों से पैबंद लगा लेते थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 20 बरस हजरत की खिदमत में रहा, लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं सुना कि हजरत ने कभी अपनी सेहत के लिए दुआ मांगी हो, बल्कि अक्सर यह दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह जब कहीं दर्द और मेहनत हो और वह अपने बंदे मोइनुद्दीन को इनायत फरमा। ए अल्लाह, जहाँ कहीं दर्द और मेहनत हो वह अपने बंदे मोइनुद्दीन को इनायत फरमा। मैंने एक बार अर्ज किया, हजरत आप अपने लिए यह कैसी दुआ मांगा करते हैं? आपने फरमाया, जब कोई मुसलमान दर्द में मुब्तला होता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और दर्द में मुब्तला होना मुसलमान के लिए अच्छा ईमान की दलील है। हजरत बड़े इबादत गुज़ार दरवेश और रात भर जाकर इबादत करने वाले बुजुर्ग थे। आपने पैदल ही अनगिनत हज किए थे।
आप लगातार 70 साल तक रात को नहीं सोए थे और पहलू को जमीन से नहीं लगाया। आप दिन में रोजे रखते, रात भर खड़े होकर इबादत करते, आप हर वक्त वजूद से भी रहा करते थे। आप कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन एक दिन आप में मुरीद शेख अली के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपने मुरीद शेख अली को एक कर्ज देने वाले ने पकड़ लिया। कहा कि जब तक मेरा फर्ज अदा न करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपने कर्ज वाले से अपने मुरीद के लिए मोहलत मांगी, मगर वह और भी सख्ती के साथ पेश आने लगा। आपको गुस्सा आ गया और आपने गुस्से में चादर मुबारक कांधों से उतार कर जमीन पर डाल दी। उसी वक्त चादर सोने चांदी के सिक्कों से भर गई। आपने फरमाया, जितना तेरा कर्ज है इसमें से ले लो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी वफ़ात से पहले ही अपने इंतकाल की खबर मिल रही थी और आपने अपनी वफ़ात के बारे में अपने खलीफाओं को पहले ही बता दिया था। हज़रत ने अपनी वफ़ात के कुछ दिन पहले हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार आकिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर फरमाया। इसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए रुखसत फरमा दिया। 5 रजब सन 633 हिजरी की शाम को आप पर एक खास कैफियत पैदा हुई। ईशा की नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और नौकरों को अंदर आने से मना कर दिया। नौकर तमाम रात दरवाजे पर पहरा देते रहे और कैफ व मस्ती की आवाज़ें सुनते रहे, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में आवाज़ आनी रुक गई। इस तरह आप दुनिया का सफ़र पूरा करके अपने हकीके रब से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह आपकी वफ़ात 96 साल की उम्र में इतवार के दिन 6 रजब 633 हिजरी यानी 1236 ईस्वी में हुई थी। आपका रोज़ा अक़दस अजमेर शरीफ में है। हर वक्त रोज़े मुबारक पर मेला लगा रहता है। मोहतमिन हजरात, इस इस्लामिक वाक़यात के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।